Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and you all are doing great. Dear students, today we are going to discuss much awaited concept. Concept का नाम जो है वो है clause. और अगर exam point of view से बात करेंगे, there is a concept that's mentioned in class 10th syllabus, that is the relative clause. So slightly we will move on the concept, but before discussing the relative clause, we have to know what clause is all about. Broadly speaking about the clause, अगर हम clause की बात करेंगे, इसमें group of words होते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो. Have a quick glance here and just read the definition from here. A clause is a group of words. Clause में group of words होते हैं that contains a subject, जिसमें एक subject होता है और subject के साथ along with the subject we write verb. Subject के साथ एक verb होती है. और clause जो है, याद रखिएगा, clause कभी कभी as a whole sentence act करता है. I mean to say that one clause can stand alone and can express a complete thought and idea. But कभी कभी simultaneously talk about the dependent one. clause के दो टाइप्स है. एक है independent clause जो act करता है as a sentence भी, और एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो पार्ट बनता है एक सेंटेंस का. ठीक है. एक कंसेप्ट है, क्लॉज के अलावा फ्रेज भी एक कंसेप्ट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज? अगर क्लॉज की बात करेंगे, क्लॉज कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. फ्रेज डजंट हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन. रिमेंबर द पॉइंट. यहां पे मेरे बच्चे अगर आप देखोगे, शी इज रीडिंग ए बुक मैंने लिखा है. शी जो है ये एक सब्जेक्ट है, यहां पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट शी है. इसके बाद इज और रीडिंग जो है, इज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग जो है ये है मेन वर्ब है कि नहीं. इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है. हमें फोकस कहां पे करना है? सब्जेक्ट और वर्ब पे. ये एक क्लॉज बना. दिस इज ए क्लॉज. यू गॉट इट नाउ? क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब कॉम्बिनेशन. क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है. और अगर हम फ्रेज की बात करेंगे, फ्रेज भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होती है. दिस इज द थिंग दैट डिफरेंशिएट्स फ्रेज फ्रॉम क्लॉज. जस्ट लाइक अगर मैं यहां पे लिखूंगा अहमद walked with a great speed. with a great speed. ये मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे ले ली. अहमद walked with a great speed. ये एक क्लॉज है, हाँ या ना? yes, it's a clause because there is the subject and there is verb. If I will remove the subject and the verb, if I will erase subject and verb from the clause, what remained there? The rest part is like this: with a great speed. It will act as a phrase. It's a group of word with a great speed. Group of word, that means it contains the four words, isn't it? Yes, but there is not the subject and verb in it. I have removed the subject and verb from the four words. The rest part is called the phrase. You got it now? Yes, sir. Okay, great. Now one more example. When the rain stopped, we went outside. अगर हम इसमें बात करेंगे, एक है when the rain stopped, ये एक क्लॉज है. We went outside, ये भी एक क्या है? क्लॉज है. ठीक है. आगे इसमें करना क्या है? अगर हम देखेंगे इसमें दो टाइप्स होते हैं. एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब होती है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो. एंड इट एक्ट्स एज ए सेंटेंस, एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट. इंडिपेंडेंट क्लॉज. शाबाश. एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट, यानी कि इसमें एक कंप्लीट थॉट होता है. अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करेंगे, दिस इज डिपेंडेंट, दिस इज समथिंग वी कैन कॉल फाइनाइट.
it is dependent on the independent clause to complete its meaning, to complete its sense. I mean to say that this part of the clause will act as the part of the sentence rather than the sentence. Dependent clause can never be a sentence at all. Are you getting me? Yes, dependent clause कभी एक complete sentence नहीं हो सकता है because it's dependent. It is dependent on the independent clause to complete its meaning, isn't it? Yes. So broadly speaking about the types of the clause, we have the two types of clauses. The first one, that's the independent clause that acts as a sentence that expresses a complete thought and idea. And talk about the second one, that is the dependent clause, and specifically talk about the dependent clause, we have to discuss one type of the dependent clause that's called the relative clause, and that is the concept that's mentioned in your syllabus, isn't it? Yes, sir. Okay, great. चले आगे चलते हैं. अब हमारे पास यहां पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ क्लॉज. एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जो मेन क्लॉज होता है, जो सेंटेंस का काम भी खुद में करता है, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, या एक कंपाउंड सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि एक कंपाउंड सेंटेंस में दो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसको हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. वो वाला कंसेप्ट भी क्लॉज से ही निकलता है. चलो जी, अब यहां पे है इंडिपेंडेंट क्लॉज, a clause that can stand alone as a complete sentence. You just write it. ये एक ऐसा क्लॉज होता है that can stand alone, जो खुद में मीनिंग बनाता है, जो स्टैंड कर सकता है, रह सकता है alone, अकेला, as a complete sentence. क्या? as a complete sentence. यानी कि ये खुद में क्लॉज भी होता है, ये खुद में एक सेंटेंस भी होता है. ठीक है? और इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, बिकॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं होती है मीनिंग बनाने के लिए. ठीक है? ये खुद में इट हैज इट्स ओन मीनिंग, इट मेक्स इट्स ओन सेंस. जस्ट लाइक आई लाइक टी. रिमेंबर द डेफिनेशन दैट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर. दैट इज क्लॉज कंटेन्स ए सब्जेक्ट and a verb. It has a subject and verb combination. Phrase. What differentiates phrase from the clause? Phrase is also a group of words, but doesn't have the subject and the verb. समझ में आया? Phrase और clause में तो यही फर्क है ना. Phrase में subject और verb combination ना होती है, group of word होते हैं. Clause में भी group of word होते हैं, but subject और verb combination होती है. ठीक है? और phrase में कभी मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, जैसे कि क्लॉज फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड एट द सेम टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, इट विल एक्ट एज ए कंप्लीट सेंटेंस. फ्रेज विल नेवर, यानी कि फ्रेज कभी एक सेंटेंस का काम नहीं कर सकती है. चलिए जी, आई लाइक टी, ये तो सब्जेक्ट हुआ है कि नहीं. यहां देखिए आप, ये आई लाइक टी, अगर हम इसकी बात करेंगे, ये आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया, और अगर हम लाइक की बात करेंगे ये वर्ब है. सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन इज क्लॉज, बट इट्स इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज देयर इज ए कंप्लीट मीनिंग इन इट, देयर इज ए कंप्लीट सेंस इन इट. आगे, शी वर्क्स हार्ड. शी वर्क्स हार्ड की अगर हम बात करेंगे, यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे ये वर्ब है. सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, इट्स independent clause and it acts as a complete sentence. Now one more sentence here, one more clause. They won the match. The match को छोड़ दीजिए, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा. they is subject, यहां पे देखेंगे they subject है, and win की सेकंड फॉर्म won है. ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ गई, एक क्लॉज बना. सर कौन सा क्लॉज बना? ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज बना, बिकॉज देयर इज ए कंप्लीट सेंस इन इट. यू गॉट इट नाउ? ओके. अगर हम आगे देखेंगे, शाबाश, अब है हमारे पास और एक क्लॉज जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. वो यहां पे आप देख सकते हो. चले जी, डिपेंडेंट क्लॉज की अगर हम बात करेंगे, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज. व्हाट is the meaning of the word subordinate?
शाबाश। अगर हम पोजीशंस की बात करेंगे या किसी जॉब की बात करेंगे, हम कहते हैं ये मेरा सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है ये मेरे अंडर काम करता है, ठीक है। इसमें खुद की एक आइडेंटिटी या खुद की एक पहचान नहीं होती है। जब तक इसका कोई ऑफिसर ऊपर नहीं होगा तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। समझ लेना बात को। सबऑर्डिनेट सिंपली मीन्स, शाबाश, टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ एनीवन। सबऑर्डिनेट, somehow we can say a slave, isn't it? Okay. इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास होता है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान नहीं होती है। इट्स डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट क्लास। जैसे कि मैंने लिखा है, ए क्लास दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, दिस इज अपोजिट टू द इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन, डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट stand alone and depends on the main clause for complete its meaning. Very good. यानी कि जब तक मैं इसके साथ मेन क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज ना लिखूं तब तक इसमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? That's why this is called a dependent. यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं। Because he was tired, क्योंकि वो बहुत थक चुका था। उसने तो कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो बहुत थक चुका था, यानी कि जो उसने किया वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का काम करेगा और ये डिपेंडेंट क्लॉज का काम करता है। वन मोर, व्हेन द बेल रैंग, ठीक है। हां, जब बेल बज गई, फिर कुछ और भी है ना, फिर कुछ और भी है, यानी कि जब कुछ और में भी आवाज आएगा तो वो होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। वन मोर, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ठीक है। ये जो यहां पे मैंने तीन यहां पे क्लॉजेस लिखे, ये तीन के तीन डिपेंडेंट क्लॉज है। इनमें तब तक मतलब नहीं बराबर आएगा जब तक इनके साथ हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ना लिखे, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ आया? अब जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, particularly talk about the dependent clause, it has its own three kinds. The first one, that's the noun clause. Second one, that's the adjective clause. एंड थर्ड वन, दैट्स द एडवर्ब क्लॉज। अभी हम उन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट दैट्स मेंशन्ड इन योर सिलेबस एंड दैट इज ओनली द रिलेटिव क्लॉज, इजंट इट? इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस ऑल द थ्री वन बाय वन इन डिटेल। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि आज हमारा कंसेप्ट जो है वो है रिलेटिव क्लॉज। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे रिलेटिव क्लॉज लिखा है, ठीक है। कंसेप्ट आज हमारा यही रहेगा। क्लॉज जो होता है, एक बार फिर से मैंने यहां पे वही वाली डेफिनेशन लिखी है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होती है। कभी कभी ये सेंटेंस का काम खुद में करता है और कभी कभी ये सेंटेंस का पार्ट बनता है। मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप मुझे बताओ कि क्लॉज जो है ये कब सेंटेंस का काम करता है, जब ये डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट? Great, shabash, independent, and it acts as the part of sentence, or we can say forms the part of sentence when it will be the dependent clause, or we can say the subordinate clause. इसको subordinate clause इसलिए भी कहते हैं because we are using the subordinate conjunctions in this clause. हम इसमें subordinate conjunctions का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि if, जैसे कि because, although, ठीक है। जो हमने अभी किए when, इनको सबऑर्डिनेट कंजक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब है हमारे पास रिलेटिव क्लॉज का कंसेप्ट। चलिए जी, रिलेटिव क्लॉज की डेफिनेशन यहां पे है, ए क्लॉज दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि रिलेटिव क्लॉज जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इट विल नॉट बी द इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट इज डिपेंडेंट। पहला चीज याद रखना है, रिलेटिव क्लॉज में ये क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज दैट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। सुन लीजिए, मैं बताऊंगा माय फादर इज ए डॉक्टर, समझ लेना बात को। माय फादर इज ए डॉक्टर, मेरा पापा जो है वो क्या है? डॉक्टर है। हु लिव्स इन द यूएसए, वो कहां पे रहता है? यूएसए में। ये जो हु है ना, इसने माय फादर के बारे में और इंफॉर्मेशन दी, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में दी। समझ में आया कि नहीं? और ये जो है, ये हु जो है,
ये इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं और यही हमारा रिलेटिव क्लॉज बनाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो रिलेटिव क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। जो मैं नाउन पहले लिखूंगा या जो मैं प्रोनाउन पहले लिखूंगा, बाद में जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन उसका इस्तेमाल करूंगा, वो वाला क्लॉज जो होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, यानी कि नाउन सब्जेक्ट के बारे में या प्रोनाउन सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। गॉट इट नाउ? ओके, ग्रेट। वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। इट यूजुअली बिगिन्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन, यही मैंने बोला। इसमें यही कंसेप्ट कोर कंसेप्ट है एंड दिस इज द मोस्ट and indispensable point in the whole lecture. This is the most important point that you have to remember. क्योंकि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसी वाले कंसेप्ट से आते हैं, यानी कि यही इसी वाले लाइन से आते हैं। सर इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स वो प्रोनाउन जो रिलेशनशिप दिखाता है किसके साथ? इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। ठीक है, हाँ। और रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे आप देख सकते हो। हु है, इसका इस्तेमाल करना है। होम, हुज, विच और दैट। ये लिस्ट आप जबानी याद करेगा क्योंकि क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे कि हु कहां पे इस्तेमाल होगा, होम कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, हुज कहां पे इस्तेमाल होगा, विच कहां पे इस्तेमाल होगा या दैट कहां पे इस्तेमाल होगा। वन मोर, रिलेटिव एडवर्ब व्हेन और वेयर की अगर हम बात करेंगे, इनको भी हम रिलेटिव क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन तो यही से आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हमेशा याद रखेगा जहां पे भी जिस भी क्लॉज में हम इन वाले प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे, मान लेना दैट इज ए डिपेंडेंट क्लॉज। वो हमेशा क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज याद रखना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, बट आपको मैं यहां पे पहले बोलूंगा कि करना क्या होता है क्वेश्चंस का। पहले हु है। हु जो है ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। यहां से आपका असल में कंसेप्ट स्टार्ट। हु जो है इट्स यूज्ड विद ह्यूमन बीइंग्स। एग्जामिनेशन में कैसे सवाल आएगा, वही वाले क्वेश्चंस मैंने यहां पे लाए हैं। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने लाए हैं आपके लिए, ताकि आप आराम से अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। हु जो है इट्स यूज्ड विद ह्यूमन बीइंग्स, ये इस्तेमाल होता है इंसानों के साथ। ठीक है, जैसे कि बॉय, ये तो इंसान है। गर्ल, ये भी क्या है? मैन, ये भी क्या है? अहमद, ये भी इंसान है। प्राइम मिनिस्टर इंसान है। प्रेसिडेंट इंसान है ना। ये पहचानना है ये इंसान है कि नहीं है। इसके बाद हमारे पास दूसरा वाला जो है दैट्स विच। विच जो है ये थिंग्स के साथ, ह्यूमन थिंग्स के साथ, यानी कि जो चीजें होते हैं, चीजों के साथ हम विच का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, ह्यूमन थिंग्स के साथ हम विच का इस्तेमाल करेंगे और ह्यूमन बीइंग्स के साथ हम हु का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद हमारे पास दैट है। एक ही बार याद रखना, दैट रिप्लेसेस बोथ, दैट रिप्लेसेस हु एज वेल एज विच। दैट मीन्स दैट कैन बी यूज्ड विद बोथ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज human things. When you will get a sentence that it's confused, when you will get that the sentence is confused, somehow it troubles you, यानी कि आपको परेशान कर रहा है। You are not recognizing, is this, you are not identifying, is this a human or human thing? What you have to do? You have to use what? That. Isn't it? That is used with both human beings as well as human things. ठीक है, यानी कि मैं यहां पे both लिखूंगा। समझ में आ रहा है? आगे चलेंगे सर। when, when जो है ना मेरे बच्चे, ये टाइम के साथ इस्तेमाल होगा। सिंपली दिस इज द डे when I was born, ऐसी एग्जाम्पल आती है। दिस इज द डे डैश डैश I was born when I was, दिस इज द ईयर, डे, मंथ। ठीक है, कोई डेट आएगा उसके साथ हम when का इस्तेमाल करेंगे। करना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा, फिलहाल आप ये चीजें याद रखें। इसके बाद हमारे पास है वायर। वायर इज यूज्ड विद प्लेसेस, ये प्लेसेस के साथ इस्तेमाल होता है, जगहों के साथ इस्तेमाल होता है।
ठीक है, ये जगहों के साथ इस्तेमाल होता है, ये एग्जाम्पल्स के साथ हम आराम से समझेंगे। और इसके बाद हमारे पास है हुज। हुज जो है, हुज इस्तेमाल होगा पोजेशन के साथ, पोजेशन के साथ। पोजेशन का मतलब है रिलेशनशिप और बिलोंगिंगनेस, किसका, ठीक है, उसका। ऐसे हम, यानी कि ये हम मेजरली हिज, हर और देयर के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये मैं बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ। ये फार्मूला आप लिख लीजिए फिलहाल के लिए, हिज उसका, हर उसका, देयर उनका। इट शोज द पोजेशन, ऑनरशिप, बिलोंगिंगनेस, एंड वी कैन यूज हुज विद द पोजेशन, शाबाश, ownership and belongingness. It replaces, this is a trick that you have to remember. It replaces three pronouns, three possessive pronouns. इनको मैं possessive pronoun भी कहता हूं, his, her और their। इनको replace करके हम whose का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा 1 मार्क्स पक्का होता है। लास्ट में हमारे पास home है। home जो है ये भी human beings के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, but it acts as the object of the verb, यानी कि ये verb का object बनता है। who और home में यही फर्क है, who acts as the subject and home acts as the object. You got it? Now what we have to do, we have to do only with the examples now, ठीक है। तो पहला चीज who human beings के साथ, which things के साथ, human things के साथ, that is used with both human beings as well as human things, when it's used with time and where it's used with places. आगे whose, it shows the possession, belongingness or ownership, isn't it? One more, that's home. Home is also used with the human beings, but it acts as the object of the verb. You got it? Great. अब मेरे बच्चे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इस तरीके से आते हैं, यानी कि ये एग्जाम्पल जो है ये पेपर में आए हैं। सुन लो, I know a man, ऐसे I know a man, समझ लेना, I know a man, इसके बाद he lives in Delhi, ठीक है। करना क्या है, you don't have to place relative pronoun blindly in the sentence। पहला चीज समझना है ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। आई नो अ मैन, मैं एक आदमी को जानता हूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही लिव्स इन दिल्ली, वो कहां पे रहता है, दिल्ली में। बोथ द सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एट द मोमेंट, एट द टाइम we are going to write, we are going to place the relative pronoun in between the clauses. It will become the dependent one. It will become the dependent, because this is called the subordinate conjunction or subordinate clause. Remember, who is used with human beings, shabai, which is used with human things, and that is used with both human beings as well as human things. I know a man, ये man जो है ये एक इंसान है, हाँ या ना, yes, है कि नहीं। One more rule, that is the most important rule, most important rule. अगर प्रोनाउन या नाउन रिपीट हो रहा है, समझ लेना बात को, अगर प्रोनाउन या नाउन रिपीट हो रहा है, जो रिपीट वाला है उसको हमें निकालना है, उसको हमें क्या करना है, निकालना है। जैसे क्या, आई नो ए मैन, मैं एक आदमी को जानता हूं, ही लिव्स इन दिल्ली, वो कहां पे रहता है, दिल्ली में। कौन रहता है, यही आदमी। ये रिपीट हुआ कि नहीं, yes, ये ही तो मैन ही है कि नहीं, yes, और इस ही को रिमूव करके हम हु का इस्तेमाल करेंगे, ये आपका सही आंसर बन गया। आई नो अ मैन, ही लिव्स इन दिल्ली, आई नो अ मैन हु लिव्स इन दिल्ली, isn't it? This is the perfect and correct answer of this question, isn't it? Yes, sir. Okay, great. Second example, यहां पे दिस इज द बुक, फिर यहां पे डैश है, दिस इज द बुक आई बॉट यस्टरडे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द बुक फुल स्टॉप, द बुक आई बॉट यस्टरडे, ठीक है। ये द बुक जो है वो कट किया है, कट करके मैंने विच का इस्तेमाल किया है क्योंकि रिपीटेशन ऑफ द नाउन मैंने रिमूव किया है। गॉट इट? वन मोर, चलिए जी, मैं ये वाली एग्जांपल यहां पे लिखूंगा, The boy
is my friend. The boy is my friend. Full stop. His father is a doctor. मैंने अभी आपको एक ट्रिक दी थी. इस रिलेटिव क्लॉज में जब मैं पर्टिकुलरली इसका इस्तेमाल करता हूं, दो क्लॉजेस होते हैं, एक और दो. एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है फुल स्टॉप पे ख्याल रखना है. अगर मैंने हिज, हर और देयर लिखा, याद रखिएगा हिज, हर और, इनको डायरेक्टली कट करना है. बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है. इनके बदले हुज का इस्तेमाल करना है. दैट विल बी योर 1 मार्क्स इन योर पॉकेट. शाबाश. अब अगर मैंने लिखा द बॉय, बॉय तो ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है? हु इज यूज्ड विथ ह्यूमन बीइंग्स. इसके हिसाब से तो हु का इस्तेमाल करना है, बट नहीं होगा. हु भी इंसान के साथ इस्तेमाल होता है, हुज भी और होम भी. हुज तब होगा जब पोजेशन होगा. पोजेशन कब होगा? जब फुल स्टॉप के बाद हिज, हर और. यहां पे फुल स्टॉप के बाद क्या है? इसको कट करके इस्तेमाल करेंगे हुज. तो ये आपका सही आंसर बना. द बॉय इज माई फ्रेंड हुज फादर इज अ डॉक्टर. इज दिस सिंपल और नॉट? Is this easy or not? Yes, sir. Are you getting me now? Yes, sir. Great. तो his ये भी possession है, belongingness है. Her it shows possession, belongingness. There it shows possession, belongingness or ownership. These are called the possessive pronouns. अगर मैं इनके बदले whose का इस्तेमाल करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ती है. ये pronouns possession दिखाते हैं और ये वाला pronoun भी possession ही दिखाएगा. ठीक है? I removed the possession with the possession. I mean to say that I removed his, her and their with whose. Isn't it? Yes, sir. Okay, great. One more. और एक एग्जाम्पल यहां पे लिखेंगे. This is the place, लिख लीजिए आप. This is the place dash we met. शाबाश. This is the place dash we met. मैंने अभी बोला वायर जो है, वायर इज यूज्ड विद द प्लेसेस. प्लेस के साथ प्लेस, ये जगह का नाम भी हो सकता है. हम लिख सकते हैं ना दिस इज कश्मीर, इजंट इट? हाँ, ये भी लिख सकते हैं किसी जगह का. दिस इज द होटल, ये वो होटल है जहां पे हम मिले. ठीक है, जहां पे हम मिले. वायर का मतलब होता है जहां. ठीक है, कहां रहते हो आप? शाबाश. वायर डू यू लिव, कहां, जहां. ऐसे हम बोल सकते हैं. दिस इज द प्लेस dash we met. तो हम लिख सकते हैं दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ऐसे ही बाकी रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है. बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए. आई रिमेंबर द डे, डेज के साथ, टाइम के साथ किसका इस्तेमाल होगा? व्हेन के साथ होगा कि नहीं? तो यहां पे व्हेन का इस्तेमाल होगा. आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट. यू गॉट इट? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. आगे, द गर्ल दैट वन द प्राइज इज माई सिस्टर. हम लिख सकते हैं ना द गर्ल हु वन द प्राइज इज माई सिस्टर, क्योंकि एक गर्ल जो है ये ह्यूमन बीइंग है. और हु इज यूज्ड विद ह्यूमन बीइंग्स, बट दैट इज यूज्ड विद बोथ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज ह्यूमन थिंग्स. ठीक है, चले जी. अब यहां पे फार्मूला आप लिख सकते हो. पहले नाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद हमारा ये रिलेटिव क्लॉज बनता है. जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां पे करेंगे, वो वाला क्लॉज जो बनता है ना, वो हमारा रिलेटिव क्लॉज बनता है. समझ लेना, दैट बिकम्स आवर रिलेटिव क्लॉज. नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, देन इट कन्वर्ट्स द क्लॉज इनटू द रिलेटिव क्लॉज. ये समझ में आया? दिस वॉज जस्ट एज द आउटलाइन रिगार्डिंग द कंसेप्ट. अगर इतना समझ में आया, बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं वो सभी इसी के रिलेटेड है. देख लो. मैं अगर ऐसे लिखूं, आई मेट ए गर्ल फुल स्टॉप शी वॉज क्राइंग. इसको चेंज करके दो. आई मेट ए गर्ल शी वॉज क्राइंग. Who
I met a girl who was I met a girl. Girl क्या है? ह्यूमन है कि नहीं है मेरे बच्चे? ह्यूमन बीइंग के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हु के साथ, मगर शी नहीं लिखेंगे बिकॉज इट रिपीट्स. दिस इज अगेन, शाबाश, दिस इज अगेन व्हाट? द गर्ल. ये गर्ल के बदले मैंने शी का इस्तेमाल किया. गर्ल भी वही है, शी भी वही है. अगर रिपीट नाउन या प्रोनाउन हो रहा है, दूसरे वाले रिपीटिशन को हम कट करके रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे जवाब नहीं लिखना. आई मेट ए गर्ल हु शी वाज क्राइम. हु भी वही है, शी भी वही है, तो एक साथ दो नहीं लिख सकते हैं. वन मोर. रिलेटिव क्लास, तो अगर हम कंक्लूजन में आएंगे, रिलेटिव क्लास इज ए डिपेंडेंट क्लास. ये आपको समझ में आया? देख लीजिए. हु वाज क्राइंग, वो रो रही थी. कौन? पता नहीं ना अभी. हु वाज क्राइंग, हु वाज, आपने बोला मैं यहां से आया, मैंने बोला हु वाज क्राइंग. वो रो रही थी. सर कौन? आप तो बोलोगे ना सर कौन, मैं बोलूंगा आई मेट ए गर्ल, एक लड़की जिससे मैं मिला. ये वाला तो इंडिपेंडेंट क्लास है, ये वाला तो डिपेंडेंट क्लास है. रिलेटिव क्लास इज ऑलवेज द डिपेंडेंट क्लास. इट्स ऑलवेज द सबऑर्डिनेट क्लास. इट विल नेवर एक्ट एज द मेन क्लास. ये कभी मेन क्लास नहीं होगा. एंड इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. और ये कभी अकेले में पूरा थॉट कंप्लीट नहीं कर सकता है. समझ में आया? ओके. वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन. ये आपने अभी लिखे. हु जो है ये मैंने बोला इट्स ए क्लास दैट शोज रिलेशनशिप ऑफ वन क्लास विद द अनदर वन. दैट मीन्स जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करता हूं, ये इंडिपेंडेंट क्लास के साथ एक रिलेशन क्रिएट करता है. इसके बगैर इसका कोई मतलब नहीं होता है. हु है, विच है, दैट है, व्हेन है, वायर है, हुज है और होम है कि नहीं? ये तो मैंने बोला ना. हु ह्यूमन बीइंग, विच थिंग्स, दैट बोथ, व्हेन टाइम, वायर प्लेस, ग्रेट, हुज पोजेशन बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप, होम with the human beings but home acts as the object of the verb. ठीक है, वो भी देखेंगे हम एग्जांपल्स के साथ. ये वाले एग्जांपल जो है, these examples are very important as far as your exam is concerned. Why so? ये चेक कर लीजिए, घर में जाके चेक कर लीजिए मेरे बच्चे, जितने भी पेपर्स में अभी तक एग्जांपल्स आए हैं वो सभी एग्जांपल्स यही है. ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स जब आपको ज़बानी आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मकसद है नहीं. चलो पहली वाली एग्जांपल. आई नो अ मैन. शाबाश, आई नो ए मैन. द मैन हैज बीन टू आइसलैंड. आई नो अ मैन. इस वाले एग्जांपल को आपको चेंज करना है. आई नो अ मैन, मैं एक आदमी को जानता हूं. द मैन हैज बीन टू आइसलैंड. अब अगर इफ यू विल फोकस हियर ऑन दिस वेरी एग्जांपल, दिस इज आई नो अ मैन. इज दिस ए ह्यूमन बीइंग और नॉट? Is this a human being or not? Yes, sir. Okay, great. चलिए, ये तो ह्यूमन बीइंग है कि नहीं? Yes, sir. The man has been to Iceland. The man is again this man. Did I repeat or not? Yes, sir. Yes. I repeated what? The man. That means the noun. Repetition वाला तो कट करेंगे. ये वाला कट करूंगा, इस ह्यूमन बीइंग के साथ क्या इस्तेमाल करूंगा? ये तो यहां पे मैंने क्लियर कट यहां पे आंसर लिखा है. आई नो अ मैन हु हैज बीन टू आइसलैंड. ये इसका परफेक्ट आंसर है. और ये वाली एग्जांपल तो बहुत बार पेपर में आई है. ठीक है, और भी एग्जांपल्स देखेंगे. ये सारे एग्जांपल जो है ना, ये पेपर में आए हैं. आप देख लेना, आपको ये सभी आएंगे कि नहीं. द थीफ स्टोल द वॉच, द थीफ वाज पुनिश्ड. द थीफ स्टोल द वॉच. एक चोर ने चुराई है घड़ी. ठीक है, द थीफ स्टोल द वॉच, द थीफ वाज पुनिश्ड. पहला चीज द थीफ और द थीफ, इट इज रिपीटेशन. और द थीफ जो है ये इंसान ही है, चोर भी तो इंसान ही है. तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, द थीफ स्टोल द वॉच हु वाज पुनिश्ड. एक तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका जो पर्सनली मैं कहूंगा मोर परफेक्ट है पहले वाले तरीके से. जहां जहां पे इंसान होगा वहीं पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है. जैसे आई नो ए मैन, मैन के पीछे ही आपने हु डाल दिया. आई मेट ए गर्ल, गर्ल के बाद ही हु डाल दिया. वैसे ही द थीफ जो यहां पे है ये तो इंसान है ना, इंसान है, तो इंसान के पीछे ही मैंने हु डाल दिया. हु स्टोल द वॉच वाज पुनिश्ड. इस वाली द थीफ को काट किया. सर यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे भी लिख सकता हूं, बिकॉज ये माने को चेंज नहीं करेगा. मीनिंग तो सेम है, मतलब सेम रहना चाहिए. ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं द थीफ स्टोल द वॉच वाज पुनिश्ड. एक चोर ने घड़ी चुराई और फिर उसको क्या दिया गया? पुनिशमेंट. तो ऐसे ही मैं
इसका माने ऐसे भी है, द थीफ हु स्टोल द वॉच, एक चोर है जिसने घड़ी को चुराया, वाज पुनिश्ड, उसको फिर सजा दी गई। यू गॉट इट? माने तो सेम ही है ना, बट ये वाला तरीका जो है, ये वाला तरीका मुझे खुद पर्सनली परफेक्ट लगता है। ठीक है, ओके। कालिदास इज ए फेमस राइटर। कालिदास इज फेमस, यहां पे मैं भूल चुका हूं, यहां पे है कालिदास इज ए फेमस राइटर। ठीक है, ही रोट सम फाइन ड्रामास। अब तो ये ही जो है, दिस इज द रिपीटेशन ऑफ कालिदास, यस और नो? तो हम लिख सकते हैं ना, कालिदास हु इज अ फेमस राइटर रोट सम फाइन ड्रामास। क्या सर ऐसे लिख सकते हैं, कालिदास इज अ फेमस राइटर हु रोट सम फाइन ड्रामास? बोथ द वेज आर परफेक्ट करेक्ट। ठीक है, बट अगर ये वाला तरीका करोगे, कालिदास ये तो इंसान है, इंसान के पीछे ही हम हु डाल देंगे, कालिदास हु इज अ फेमस राइटर। ठीक है, हु इज अ फेमस राइटर, हाँ, उसके बाद ही को कट करना है बिकॉज ये रिपीटेशन है कालिदास की। आगे, हियर इज द डॉक्टर, वन मोर एग्जाम्पल, हियर इज द डॉक्टर, द डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये डॉक्टर ह्यूमन बीइंग है, तो यहां पे हम हु का इस्तेमाल करेंगे और इस वाले द डॉक्टर रिपीट को हम काट करेंगे, तो आएगा आंसर में हियर इज द डॉक्टर हु क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया। यू गॉट इट नाउ? आसान है या डिफिकल्ट है? बहुत आसान है ना। ये एग्जाम्पल्स सारे पेपर में आए हैं, और जो पेपर आएगा एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस लाइक दिस इन द एग्जामिनेशन। वन मोर, I met a boy, the boy was very cruel. जबानी करो इसे, I met a boy who was very cruel. ठीक है, the boy is again the repetition of boy, isn't it? Okay, one more. The man is honest, the man is trusted. The man who is honest is trusted. सर क्या ऐसे लिख सकते हैं, the man is honest who is trusted? ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो ये चीज आप समझ रहे हो? The man, ये इंसान है कि नहीं? द मैन इंसान है कि नहीं? इज द मैन के पीछे अगर हम हु का इस्तेमाल करेंगे तो सही होगा ना। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। आगे, वन मोर एग्जाम्पल, वी मेट अ गर्ल, द गर्ल हैड लॉस्ट हर वे। वी मेट अ गर्ल, ठीक है, वी मेट अ गर्ल हु हैड लॉस्ट हर वे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां जहां पे ह्यूमन बीइंग वहां वहां पे हु, जहां जहां पे चीज वहां पे विच, और दैट दोनों को रिप्लेस करता है। आगे, the man stole the bicycle, he has been arrested. The man stole the bicycle. Bicycle समझ लीजिए, ये एक चीज है। Is this an object or not? Yes, this is the object. But before this is the man. Don't be troubled in it. Don't have a confusion. ये वाली एग्जाम्पल अगर आ गई ना, इस तरीके की एग्जाम्पल, आपको करना क्या है, पहले देखना है पहले इस्तेमाल क्या हुआ है और रिपीट क्या हुआ है। सुन लो, द मैन स्टोल द बाइसिकल। एक मैन है, एक आदमी है, उसने स्टोल किया है, चुरा के लिया है क्या? ही हैज बीन अरेस्टेड। फिर उसको क्या किया गया है? अब बाइसिकल के बदले रिपीटिशन हुआ है या मैन के बदले? मैन के बदले। तो मैन के साथ ही आपको रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, बाइसिकल के साथ नहीं, क्योंकि जिस अगर ऑब्जेक्ट की रिपीटिशन हो रही है तो फिर विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इंसान की रिपीटिशन हो रही है तो हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लो अब। तो अब आएगा द मैन हु स्टोल द बाइसिकल हैज बीन अरेस्टेड। क्या ऐसे लिख सकते हैं सर, द मैन स्टोल द बाइसिकल विच हैज बीन अरेस्टेड? विच कहां से आएगा? वो ऑब्जेक्ट है, विच हैज बीन अरेस्टेड, किसको? चीज को अरेस्ट करेंगे, नहीं कर सकते हैं ना। तो रिपीटेशन पे फोकस करना है। इसका मतलब ये यहां से ही आपको बोल रहा है कि मैन के साथ आपको इस्तेमाल करना है रिलेटिव प्रोनाउन। वन मोर, द चाइल्ड इज डेड, द चाइल्ड केम हियर यस्टरडे। तो इस वाले द चाइल्ड को खत्म करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हु केम हियर यस्टरडे। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो है ये आपको करने हैं, ठीक है। नाउ यहां पे एग्जाम्पल एक है, ये तो आपको परेशान कर सकती है। चलो जी, आई हैव, आप इस वाले एग्जाम्पल को लिख लीजिए। आई हैव फाउंड द एम्ब्रेला I have found the umbrella. Full stop. I had lost it.
I had lost it. अगर आपको ये वाली एग्जाम्पल आई ना, मान लीजिए यू आर डन विथ इट. I have found the umbrella. अम्ब्रेला चीज है या इंसान है, या टाइम है या डे है? चीज है ना. चीज के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विच का. वेरी गुड. तो मैं लिख सकता हूं ना, आई हैव फाउंड द अम्ब्रेला विच. ठीक है. आई हैड लॉस्ट इट. इट लिखना गलत होगा. सर क्यों? बिकॉज इट जो है ये किसके बदले आया है? ग्रेट, यू आर गेटिंग इट राइट नाउ. अब मैं अगर इसको यहां पे लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ती है. यहां पे मैंने लिखा सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए. आई हैड लॉस्ट इट नहीं, इट लिखना गलत होगा क्योंकि अम्ब्रेला मैंने पहले ही लिखा. जैसे कि आई हैव फाउंड द अम्ब्रेला विच आई हैड लॉस्ट. ठीक है. ठीक है. अगर मैंने फिर से लिखा विच आई हैड लॉस्ट इट, इट अम्ब्रेला 2 बार आया. कितनी बार आया? विच तो 1 बार आया, इट तो दूसरी बार आया. ये तो मैंने फिर से रिपीट किया और रिपीटिशन गलत होता है. ओके. वन मोर. आई हैव फाउंड द अम्ब्रेला दैट आई हैड लॉस्ट भी आएगा बिकॉज दैट रिप्लेसेस बोथ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज ह्यूमन थिंग्स विच आई हैड लॉस्ट. वन मोर. प्लीज शो मी द रोड. प्लीज शो मी द रोड लीड्स टू श्रीनगर. तो इसका आंसर है प्लीज शो मी द रोड विच लीड्स टू श्रीनगर. ठीक है ना. ओके. ह्यूमन थिंग्स के साथ विच का इस्तेमाल. वेयर इज द चीज? पनीर. Where is the cheese? It was in the fridge. समझिए ना. Where is the cheese? चीज, ये चीज ही है. पनीर है ना, ये तो ह्यूमन थिंग ही है ना, चीज ही है ये. तो इसके साथ हम विच का इस्तेमाल यहां पे करेंगे. विच. और ये इट जो है इट इज द रिपीटेशन ऑफ चीज. इस वाले इट को खत्म करके was in the fridge. That means where is the cheese? That was in the fridge. Which was in the fridge भी आ सकता है, आ सकता है. ठीक है. One more. Can I borrow the book? You are reading it. One more confusing sentence for you. It मैंने लास्ट में डाला है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा. मगर ये it जब भी यहां पे आएगा ना, जब भी आएगा ये हमेशा रिपीटेशन ऑफ नाउन होगा. क्या होगा? याद रखा. इससे पहले भी एक एग्जाम्पल की ना, इट मैंने लास्ट में डाला, अम्ब्रेला का ये क्या रिपीटेशन था. और यहां पे इट जो है ये किसका रिपीटेशन होगा? बुक का. ग्रेट. कैन आई बोरो द बुक? कैन आई बोरो द बुक दैट यू आर रीडिंग? दैट यू आर. समझ में आया? इट लिखना जरूरी क्या? ये गलत होगा. आगे. व्हेन, वायर और हुज. अभी तक हमने अभी 3 को डिटेल में डिस्कस किया. हु, विच और दैट को. ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन, वायर और हुज को, और लास्ट में हमारा होम रहा. अब सुन लो. अब मैंने यहां पे हुज जो है ये मैंने आपको बोला देयर, हिज और हर, बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप, रिलेशनशिप. द मैनेजर स्पोक टू द वर्कर्स. फुल स्टॉप के बाद क्या है? अब लिखने की जरूरत नहीं है. देयर को काट करके क्या इस्तेमाल करेंगे? हुज. पहला चीज, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे वहां पे रिलेटिव क्लॉज जब आप देखोगे ना, तो रिलेटिव क्लॉज में पहले आपको ये वाला सेंटेंस निकालना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा. गलत कैसे होगा? अक्सर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्लिकिंग हियर रॉन्ग. व्हाई सो? बिकॉज दे आर जस्ट रीडिंग द सेंटेंस फ्रॉम द बिगिनिंग. द मैनेजर इज ह्यूमन बीइंग एंड दे आर पुटिंग व्हाट? हु. एंड दैट विल बी योर रॉन्ग आंसर. वो आपका गलत जवाब होता है. अगर यहां से पढ़ लिया द मैनेजर तो इंसान है, इंसान के साथ हु का इस्तेमाल होगा. सर मैंने यहां पे हु का इस्तेमाल किया, ये गलत है मेरे बच्चे, क्योंकि आगे जो है आगे भी सेंटेंस को देखना है. यहां पे देयर है, इट शोज द पोजेशन, बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप. देयर को कट करके हम हुज का इस्तेमाल करेंगे एंड दिस विल बी द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू गॉट इट नाउ? ग्रेट. यहां पे आई नो अ मैन, हिज सन इज अ डॉक्टर. शाबाश. आई नो अ मैन, अगर मैंने मैन की तरह देखा तो हु आएगा? नहीं देखना है. हिज की तरह देखना है, देयर की तरह देखना है, हर की तरह देखना है. तो यहां पे आंसर हुआ आई नो अ मैन हुज सन इज अ डॉक्टर. आप देख लीजिए ये वाली एग्जाम्पल जो है एटलीस्ट 5 बार ये अभी तक पेपर में रिपीट हुई है, एटलीस्ट. और ये एग्जाम्पल जो है ये तो अक्सर आप एग्जाम पेपर्स में देखोगे. ठीक है. आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करो, यही वाले एग्जाम्पल्स आप वहां पे देखोगे, क्योंकि मैंने उन्हीं पेपर से ये वाले एग्जाम्पल्स लाए हैं. चलिए आगे चलते हैं. ये समझ में आया? हुज जो है देयर, हिज, हर, बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप. ठीक है. एंड पोजेशन. ग्रेट. चले यहां पे वन मोर एग्जाम्पल. आई मेट ए वुमन, हर. शाबाश. आई मेट ए वुमन, हर डॉटर इज इल. डैश फुल स्टॉप के बाद क्या है? हर को काट करके क्या इस्तेमाल करेंगे? हुज. बात खत्म. समझ में आया? चलो. आई नो ए गर्ल,
हर ब्रदर लिव्स इन द यूएसए। शाबाश। आई नो ए गर्ल, फुल स्टॉप के बाद क्या है? हर को काट करके हुज का इस्तेमाल। हर ब्रदर लिव्स इन द ये आप समझ रहे हो? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे इट्स टाइम व्हेन वी फर्स्ट मेट। ठीक है, टाइम के साथ किसका इस्तेमाल होगा? हाँ, चाहे डे होगा, चाहे ईयर होगा, चाहे मंथ होगा। दिस इज द मंथ, दिस इज द डे, दिस इज द ईयर, इजंट इट? जब ये आएंगे ना, इनके पीछे आपको व्हेन का इस्तेमाल हमेशा करना है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। दैट इज द विलेज इज इट प्लेस, ऑब्जेक्ट और ह्यूमन बीइंग? प्लेस। ग्रेट। इसके पीछे क्या लिखेंगे? वेयर लिखेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा है दैट इज द विलेज वेयर माय पेरेंट्स लिव। ठीक है, ओके। वन मोर, संडे इज द डे, डे के बाद जबानी कर लीजिए। संडे इज द डे के बाद व्हेन। ग्रेट। संडे इज द डे व्हेन वी हैव नो क्लासेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जबानी होना चाहिए। डू यू नो द ईयर? ईयर के बाद शाबाश। ईयर के बाद डे के बाद व्हेन, डे के बाद व्हेन, मंथ के बाद व्हेन, ईयर के बाद ग्रेट। तो डू यू नो द ईयर व्हेन इंडिया बिकेम? समझ में आ रहा है? शाबाश। इसके बाद ए रिलेटिव क्लॉज विथ होम। लास्ट में रहा हमारा क्या? होम रहा ना अभी। ये एक्ट करता है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये लास्ट वाला रिलेटिव प्रोनाउन है। यहां से देख लीजिए ये कहां पे इस्तेमाल होगा। होम इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और द प्रीपोजिशन इन द रिलेटिव क्लॉज। या हम इसको प्रीपोजिशन के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे रिलेटिव क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला, नाउन, पहले नाउन आएगा, नाउन का तो आना जरूरी है। इसके बाद प्लस होम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। चलो जी। द मैन डाई डैश आई मेट यस्टरडे इज ए डॉक्टर। द मैन, जो आदमी, ठीक है, द मैन डाई डैश आई मेट यस्टरडे, जिससे मैं मिला, ठीक है। तो जब ऐसा वाला सेंटेंस होगा किसका? जिसका, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम हमेशा होम का इस्तेमाल करते हैं। सुन लीजिए, अगर ऐसे एग्जाम्पल आई, द मैन डाई डैश आई मेट यस्टरडे, द मैन हु आई मेट यस्टरडे, वो क्या होता है? माने ही नहीं है ना। द मैन हु आई मेट यस्टरडे, नहीं, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हु तो इस्तेमाल नहीं होगा बिकॉज दैट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट, दैट वर्क्स एज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, एंड होम एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट एंड इट शुड बी एज द ऑब्जेक्ट, इजंट इट? द मैन होम आई मेट यस्टरडे, जिससे मैं मिला, कल जिस आदमी से मैं मिला, इज द डॉक्टर, वो क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे द मैन होम आई मेट, जिस आदमी से मैं मिला, मैं जो हूं मैं सब्जेक्ट का काम करूंगा और जिसे मैं मिला वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, यानी कि होम ऑब्जेक्ट का काम करता है। आगे, द गर्ल यू हेल्प्ड थैंक्ड यू। द गर्ल होम यू हेल्प्ड, जिसको ये हमेशा याद रखिए, जिसका, जिससे, जिसको, जब ये वाला माने आएगा ना, हमेशा होम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे शी इज द टीचर डैश डैश एवरीवन एडमायर्स, ये वो उस्ताद है जिसके, बोला ना मैंने, जिसके इन वाले सेंटेंसेस में होम का इस्तेमाल करते हैं। ये वो टीचर है जिसकी तारीफें सभी करते हैं। होम एवरीवन एडमायर्स। आप खुद देख लीजिए, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे इस्तेमाल करे, ठीक है, तो वो यहां पे सूट नहीं हो सकता है। आपको खुद लगेगा कि इट गिव्स द ऑकवर्ड मीनिंग, ये कुछ ऑड मीनिंग दे रहा है। अगर हम यहां पे देखेंगे, द स्टूडेंट द प्रिंसिपल प्रेज्ड वन द अवार्ड, द स्टूडेंट होम द प्रिंसिपल प्रेज्ड, यानी कि वो स्टूडेंट जिसको प्रिंसिपल ने तारीफें किए, वन द प्राइज अवार्ड, वन द प्राइज, ठीक है, उसने क्या जीता? अवार्ड। द वुमन वी इनवाइटेड कुड नॉट अटेंड द पार्टी, जिस वुमन को, मैंने बोला जिसको, ठीक है, द वुमन हु, अगर हम ऐसे देखेंगे, अगर हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, द वुमन हु वी इनवाइटेड, ये और मीनिंग दे रहा है ना। विच वी इनवाइटेड, ये ऑब्जेक्ट है नहीं, पहले तो विच बाहर होगा, व्हेन भी बाहर होगा, दैट भी, वायर भी, क्योंकि ये प्लेसेस डेज के साथ इस्तेमाल होंगे। अब सिर्फ हु और होम में ख्याल रखना है बस। हु और होम में, हु जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, होम जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा। द वुमन होम वी इनवाइटेड कुड नॉट अटेंड द पार्टी, वो औरत जिसको हमने इनवाइट की। वन मोर यहां पे एग्जांपल है, ही इज द फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है जिस पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं। होम आई ट्रस्टेड है लॉट, जिस पर मैं बहुत
भरोसा करता हूं। ऐसे ही है, द प्लेयर होम द कोच सिलेक्टेड स्कोर द विनिंग गोल। जिस प्लेयर को एक बार फिर से, तो कंक्लूजन में क्या आ रहा है सर? कंक्लूजन में आ रहा है, हमें याद रखना है जिसको, ठीक है, जिसके। तो ये माने जब आएगा तो हमें हमेशा इस्तेमाल करना है होम, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? चलिए, ये तो हमारा होम भी कंप्लीट हो गया। ये दैट का किस्सा जो है, बस 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स आई विल टेक फ्रॉम यू। ये दैट का किस्सा जो है, दैट जो है यहां पे मैंने लिखा है इसकी डेफिनेशन, ए रिलेटिव क्लॉज दैट इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले तो ये पता ही है सर, ये बनाएगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। दैट गिव्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, एनिमल और थिंग, हमेशा याद रखिएगा। अब अगर ना ह्यूमन बीइंग आया, ना ह्यूमन थिंग आया, अब बर्ड आया या एनिमल आया, ये तो मैंने बोला नहीं था। इसके साथ सर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके साथ हम हमेशा दैट का इस्तेमाल करेंगे। पर्सन के बदले भी दैट, एनिमल के बदले भी दैट, बर्ड के बदले भी दैट। इस चीज को लिख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट कैन रिप्लेस हु को भी रिप्लेस कर सकता है, होम को भी रिप्लेस कर सकता है, विच को भी रिप्लेस कर सकता है। यानी क्या, इंसान के बदले भी और चीज के बदले भी, जैसे मैंने बोला, हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब विच इन डिफाइनिंग रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस, फार्मूला है नाउन पहले, इसके बाद दैट, इसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस, ये मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इसके बाद ये क्लॉज बनाएगा। चलो जी सुन लो, द बुक ये चीज है कि नहीं? यहां देख लीजिए, द बुक ये चीज है, यानी कि ह्यूमन थिंग ही है ना। द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे हम लिख सकते हैं द बुक विच आई बॉट यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग भी, यानी कि विच की जगह पे मैंने दैट को भी लिखा। ये यहां पे मैंने प्रूव करके दिया कि इसको लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही द बॉय तो इंसान है। Who won the race is my cousin, मगर मैंने लिखा है the boy that won the race is my cousin. Great. ऐसे this is the teacher that helped me to become successful in my life. This is the teacher who helped me a lot. This is the teacher that helped me to become successful in my life. Isn't it? Yes. I replaced who with that. I replaced which with that. समझ में आया? It can replace who, whom and which. Great. One more. The car that my father purchased is new. The car which my father purchased is new. This is the house that we built last year. ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, and you can jot down the same examples on your notebook. Thank you. Have a nice day ahead.